प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योगा कार्यक्रम का किया नेतृत्व। कहा, योग हर किसी के लिए जरूरी। झारखंड समेत पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हो रही धूम। हर जगह लोगों ने किया योगाभ्यास। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आएंगे झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गिरिडीह में महाजनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची में युवाओं के बीच वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने तैयारियों का लिया जायजा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऐतिहासिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां सभी लोगों के साथ योगाभ्यास किया। Kapalabhati breathing. So in Kapalabhati breathing, we'll be forcefully contracting the abdomen, and the air forcefully shoots out of the nose like this. In Kapalabhati breathing, after we contract the abdomen and the air comes out of the nose, the inhalation happens on its own. Okay? We'll take 20 repetitions of Kapalabhati breathing. So let's close the eyes. Take a deep breath in through the nose, and we'll take 20 rounds of Kapalabhati. Let's begin. Relax. Let the eyes closed. Relax the hands. Notice the energy or prana in the body, all over the body. When you feel ready, you can open your eyes. Good. And we'll do Nadi Shodhana Pranayama, or alternate nostril breathing. So let's bring the left hand into Dhyana Mudra. Index finger and thumb lightly touching, other 3 fingers extended. Rest the left hand on the knee, left knee. And the right hand, let's take it into Pranayama Mudra. So you'll bring the index and middle finger towards the palm and place the right thumb on the right nostril. Close the nostril. And exhale out of the left nostril. Close the eyes. Good. Inhale through the left nostril. Close it with the ring finger. And exhale out of the right nostril. Good. Inhale. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग हर किसी के लिए जरूरी है। Of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression
of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में योग दिवस मनाया। हमीरपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में पहुंचकर श्री ठाकुर ने योगासन किए। उन्होंने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बताया। हमीरपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में पहुंचकर अनुराग सिंह ठाकुर ने योगासन किए। अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बताया। हल्के जंप, थोड़ा शेक करते हैं, फास्ट। ये ऐतिहासिक क्षण है। स्टेट विजिट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। दुनिया भर की निगाहें इस स्टेट विजिट पर है और जैसा आपने प्रधानमंत्री जी के हर विदेशी दौरे पर देखा है, कुछ न कुछ नया इतिहास रचकर आते हैं और इस विजिट में भी नए आयाम स्थापित होंगे। और पहला तो आज ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब होने जा रही है तो यूएन के कैंपस में ही 180 देशों के जो प्रतिनिधि होंगे वहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ योग भी कर रहे होंगे। राजभवन में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए। राजभवन के सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग एक ऐसी साधना है जो शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। अब पीठ के बल लेट जाए। राज्य सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी रांची के मेकॉन स्टेडियम में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, समीर उरांव और विधायक समरीलाल समेत अधिकारियों और आमजनों ने योगाभ्यास किया। आप रिलैक्स, दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथ बगल में।
हम लोग खड़े होकर करने वाले अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन के लिए तैयार होंगे। राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आम से लेकर खास लोगों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भी छात्र छात्राओं ने योग में हिस्सा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रखंड मुख्यालय से लेकर पंचायतों में भी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ आम लोगों ने योग किया। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। अलाम। अब हम महत्तम भवितव्यम शुड बी वेल। कमर में कितना भी दर्द हो, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर। रांची के हरमू स्थित पटेल पार्क में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने योगाभ्यास किया। इस दौरान क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र सहित पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भी योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र रांची में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें केंद्र प्रभारी संजीव कुमार समेत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। रांची स्थित एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय में भी योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न योग आसनों से लाभान्वित होने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लिया। रांची के सांसद संजय सेठ भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रांची विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना एवं स्कूल ऑफ योग के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और सम्मानित नागरिकों ने भाग लिया। योग एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहां शरीर, मन और आत्मा संयुक्त होते हैं। देश और दुनिया की बड़ी आबादी आज योग को अपनाकर स्वस्थ शरीर के साथ मानसिक शांति की प्राप्ति कर रही है। शरीर को फिट और दिमाग को शांत रखने के लिए योग करना आज लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गया है। बात यदि योग के फायदे की जाए तो रांची के एक ऐसे बुजुर्ग दंपति हैं जिन्हें ओवरवेट और मानसिक तनाव की समस्या थी। 61 वर्षीय मुकेश राठौर ने योग के माध्यम से मात्र 6 महीने में 6 किलोग्राम वजन कम किया है। वहीं उनकी पत्नी किरण के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। मेरा शरीर बहुत बल्कि है, मुझे बहुत तकलीफ था बैठने में। जब से मैं योगा ज्वाइन किया हूँ, 5-6 महीना हो गया मेरे को, तब से मेरा वजन भी कम हो गया है 6 किलो और मुझे बहुत आराम भी लग रहा है। अब बैठने में दिक्कत नहीं होती है, बैठ जाता हूँ मैं। लेकिन योगा करने के बाद से मेरे अंदर बहुत स्फूर्ति आई है, काम करने में मेरे सुधार हुआ है और मानसिक शांति मुझे बहुत मिली है। आज के समय में योग युवाओं के बीच भी काफी चलन में देखा जा रहा है। राजवर्मन को ऑफिस में लगातार कई घंटों तक बैठकर काम करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की समस्या आ गई थी, लेकिन योगाभ्यास ने इनकी कई समस्याओं का हल एक साथ कर दिया है। जॉब प्रोफाइल है वो ज्यादातर बैठ के काम करने वाला है कंप्यूटर में, तो उससे बैठने से बहुत ज्यादा मोटापा और सर में, गले में सर पीछे दर्द होता है और उससे काफी समस्या भी है और मोटापा भी हो गया था। तो इसके साथ यूरिक एसिड ये सब भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ख्यातियां प्राप्त कर चुके योग प्रशिक्षक आर्य भगत प्रहलाद ने बताया कि विगत 9 वर्षों से देश और दुनिया में लोग योग और अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हुए हैं।
इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग के माध्यम से देश और दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान कहें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, क्योंकि उन्हीं ही द्वारा योग दिवस का उद्बोधन किया गया और जिसके कारण आज 9वां हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योगासन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के साथ मन को शांति प्रदान करता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए योगासन का नियमित अभ्यास ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री से टेस्ला के सह संस्थापक एलन मस्क ने मुलाकात की। मस्क ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भारत में निवेश की संभावनाओं को लेकर उम्मीद जाहिर की। Excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. So how do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, प्रधानमंत्री की यह पहली राष्ट्रीय न्यूयॉर्क यात्रा है। इस यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट से लेकर होटल पहुंचने तक अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें निराश नहीं किया और उनके बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान श्री मोदी ने ऑटोग्राफ भी दिए। मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें निराश नहीं किया, वे लोगों के बीच पहुंचे और उनका अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद होटल में लॉबी में लोगों ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की, ऑटोग्राफ भी दिए। मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे के बीच लोगों में गर्मजोशी साफ तौर से देखी जा सकती थी। इससे पहले न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी की गई। वहां पर भी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे। लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। प्रणाम है मोदी जी आपको। तो उन्होंने भी हंस के बहुत अच्छे से दो बार प्रणाम किया, जाते हुए भी प्रणाम किया, आते हुए भी प्रणाम किया। और मोदी जी के फेस पे क्या औरत था, क्या औरत था, क्या बहुत शांति और बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें नमस्ते की। थैंक यू, वी आर वेरी हैप्पी, thrilled, so good. I did manage to see him from a very close distance. I almost was able to touch his hand. सत श्री अकाल किया, उन्होंने जवाब दिया सत श्री अकाल। दिल खुश हो गया। प्यार लेके आए मोदी जी के लिए, टाइम लेके आए, so that's how गोवा में पर्यटन कार्य समूह की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने कहा कि भारत पर्यटन के साथ साथ ग्रीन टूरिज्म पर भी फोकस कर रहा है। Globally, it is rare that you get a chance to be a tourist yourself, but you are in Goa, a major tourist attraction in India. So, I urge you to take out some time from your serious discussions to explore the natural beauty and the spiritual side of Goa. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। रांची के मोराबादी मैदान से वे 5 प्रमुख विभागों के युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गिरिडीह में पार्टी द्वारा आयोजित महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्री नड्डा के गिरिडीह दौरे को लेकर पार्टी की ओर से आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
पार्टी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक विरंची नारायण ने तैयारियों का जायजा लिया। उधर श्री नड्डा के दौरे को लेकर प्रशासन भी चौकस है और प्रमुख सड़कों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गिरिडीह दौरे को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री मरांडी ने आज गिरिडीह परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल के शासनकाल में देश का चौतरफा विकास हुआ है। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और विधायक विरंची नारायण मौजूद थे। ये लगातार कार्यक्रमों का श्रृंखला चलते रहता है, लेकिन उस प्रमंडल में भी कार्यक्रम हुआ, उस प्रमंडल में भी हुआ। और ये जो उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र, इसका एक प्रकार से इसको सेंटर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण जगह गिरिडीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा द्वारा महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों तक उपलब्धियों को बताया जा रहा है। इसी क्रम में आज सांसद संजय सेठ ने रांची में पत्रकारों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश का हर नागरिक सुरक्षित है। 9 साल में देश में एक भी आतंकवादी हमले नहीं हुए। गरीब कल्याण से लेकर भारत के नवनिर्माण के लिए देश में बेहतर नीतियां बनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने महाजनसंपर्क अभियान के क्रम में आज रामगढ़ में प्रबुद्ध नागरिकों से मुलाकात की और केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत योजना और दुमका से मुद्रा योजना की शुरुआत की, जिससे बड़ी संख्या में लाभुकों को फायदा पहुंच रहा है। हासिल करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें रामगढ़ के विशिष्ट व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख हैं, उनको प्रणाम करके उनको मोदी के 9 साल के काम का फोल्डर देकर और उनसे अपने लिए समर्थन का आग्रह करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ जिला की ओर से महाजनसंपर्क अभियान के क्रम में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद जयंत सिन्हा, पूर्व सांसद महेश पोद्दार और विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने संयुक्त रूप से सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रामगढ़ में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है तथा देश में हवाई अड्डों का अनवरत विस्तार हो रहा है। 9 साल में हम लोगों के एयरपोर्टों की संख्या को हम लोगों ने दोगुना कर दी। साथ साथ जब एयर इंडिया का निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, टाटाज ने वहां विश्व में सबसे बड़ा हवाई जहाज का उन्होंने ऑर्डर दिया, 470 प्लेन का। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे व्यापारियों ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री के सपने और सोच धरातल पर दिखाई पड़ रहे हैं तथा आज हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर कर रहा है। आज के सम्मेलन में सबसे बड़ी बात तो यह लग रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना सच होने को है। एक हवाई चप्पल पहना हुआ आदमी भी हवाई जहाज की यात्रा करने में अब सफल होने जा रहा है। भाजपा की ओर से 1 महीने तक चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज हजारीबाग जिले के चुरचू रोड स्थित सीतागढ़ा में सीपीएस सिद्धू कानू विद्यापीठ और छात्रावास के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक रामदत्त चक्रधर, कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी के अध्यक्ष रामेश सरावगी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची चाटा रोड NH 33 पर बुंडू थाना क्षेत्र के गोसाईडीह मोड़ के निकट एक साइकिल सवार के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घटनास्थल पर मौत हो गई। थाना प्रभारी पंकज भूषण ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान के लिए आसपास के गांवों में सूचना भेजी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
साइकिल सवार थे, कोई अज्ञात वाहन के द्वारा से धक्का मार दिया गया है। तो मेरे पेट्रोलिंग पार्टी को तुरंत मैंने घटनास्थल भेजा और इनको उठा करके अस्पताल में लाया गया, लेकिन इनकी मृत्यु रास्ते में या घटनास्थल पर ही हो गई है। पहचान कराने के लिए मैंने सभी जगह अगल बगल के जितने भी थानों हैं और जो भी मुखिया वगैरह है सबके मैं। और अब बात करेंगे मौसम की। मौसम के आगमन के साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे के दरमियान 44.3 मिलीमीटर सर्वाधिक बारिश रांची के टाटीसिलवे में दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 27 जून तक पूरे राज्य में बारिश होगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39.6 और न्यूनतम 29.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41.4 और न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विश्व की दिग्गज आईटी कंपनियां भारत को एक निर्माण केंद्र के रूप में देख रही हैं। इसी कड़ी में गूगल की एक कंपनी अल्फाबेट इंक एक्सेल ने भी भारत में स्मार्टफोन के उत्पादन की घोषणा की है। इसके लिए कुछ कंपनियों से बातचीत भी शुरू कर दी गई है और भारत का रुख कर रही है। इसी कड़ी में गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पिक्सल स्मार्टफोन का भारत में उत्पादन करना चाहती है। कंपनी इसके लिए घरेलू आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रही है। इसे लेकर गूगल ने भारत में कुछ कंपनियों से बातचीत शुरू की है। इसमें अलावा इंटरनेशनल और डेक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया शामिल है। इसके अलावा वह फैक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की इंडियन यूनिट भारत FIH से भी बात कर रही है। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 21 जून साल 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को मनाने की पहल की थी। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से समर्थन दिया। 21 जून के दिन को चुनने की वजह यह है कि यह दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है योग सूत्र। इसे महर्षि पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि ने अष्टांग योग में योग को 8 सूत्रों में पिरोया है। इन 8 अंगों के अपने अपने उप अंग भी हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योगा कार्यक्रम का किया नेतृत्व। कहा योग हर किसी के लिए जरूरी। झारखंड समेत पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की रही धूम। हर जगह लोगों ने किया योगाभ्यास। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आएंगे झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गिरिडीह में महाजनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची में युवाओं के बीच वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने तैयारियों का लिया जायजा।